Good morning, class. Sorry, again, good afternoon, class. So, so not many people have joined right now. Okay, okay. So we will be continuing the yesterday's lecture on the columns, on design of columns using WSM method, right? तो आज ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोगों को डिजाइन करना है उस कॉलम को। आज हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल देखेंगे। एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ कॉलम में, और एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे सर्कुलर टाइप ऑफ कॉलम अगर आपको डिजाइन करना पड़ेगा तो, राइट? सो I'll just share my screen to you all and let's begin this class. So, is my screen visible to you? Can any one of you just respond and Yes, tell me? sir. Okay, okay, thank you. So, let's see this example, right? So, you have to design a column to carry a load of 1000 kilonewton. See, the load is already given कि कितना लोड हम लोगों को इसमें लगाना है, ठीक है? 1000 kilonewton का लोड जो है वो कॉलम को बेयर करना है. So length of the column is also given that it should be 12 meter and restrained at both ends. So the column is restrained at both the ends, right? So that means it is fixed at both ends, right? And additional data that is given is M20 concrete and Fe415 steel is given. Design a square column. So first here we are designing a square column, right? So so how can we design this column? Right. So here is one cross section. See, here is a cross section of a square column. So if it is a square, then both the dimensions are same. So this is also B, this is also B. It will be same, right? In rectangular, it will be different. And we have area of concrete and area of steel. So what data is given to us? The length of the column is 12 meters. So you know that this column is of 12 meters, fine, and it is restrained at both the ends. That means it is restricted. That means it is fixed at both the ends, right? तो ये वाला केस है इसमें. So जैसे ही आपको पता चलता है कि ये वाला केस है फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, उस केस में आप लोग क्या लेते हैं? इफेक्टिव लेंथ को क्या लेते हैं आप लोग? इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाती है इसकी? सी, अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो मैंने शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को दिखाया था ये चीज. सो कॉलम फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, राइट? ये वाला केस है, ठीक है? So this is the case. So you will be taking this value 0.65 value. Recommended value is 0.65 times. Effective length will be 0.65 times of length. So you can see here, yes. Effective length will be 0.6 times of the original length. So original length is 12 and 0.6 times is 7.8 meters. So this will be its effective length. ठीक है, अब इसी का यूज करना है आपको effective length हर जगह पे, ठीक है? अब आप लोगों को नेक्स्ट निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ द स्टील, राइट? एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम. सो एरिया ऑफ स्टील हमने क्राइटेरिया में देखा था कितना होना चाहिए था. See, minimum area of steel should be 0.8%, right? And maximum should be 6. So you don't know अभी कि आपका कितना एरिया स्टील होगा, तो आपको इस रेंज के बीच में ही एज्यूम करना पड़ेगा एक वैल्यू, ठीक है? सो हेयर देखिए 0.8 है और ये 6 है, तो आप इसके बीच में 1 2 3%, 4% से ज़्यादा नहीं जाना आपको. 1 2 3 समथिंग ऐसे परसेंट आप ले सकते हो उसमें, मतलब अज्यूम कर सकते हो. फिर बाद में हम उसको चेक करेंगे कि ये उसमें पास हो रहा है कि नहीं हो रहा सेक्शन, ठीक है? सो हेयर वी आर अज्यूमिंग स्टील ऑफ 1%. देखिए 0.8 मिनिमम होता है, 6% मैक्सिमम होता है. हम कितना ले रहे हैं? 1%. सो वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट राइट नाउ, ठीक है? हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का स्टील लगा है. तो एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम कितना हो जाएगा? 0.01. दैट मीन्स 1%, 1/100 into
बी स्क्वायर दैट इज एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन बी इंटू बी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो बी इंटू बी दैट विल बी द एरिया, रेक्टेंगल होगा तो ये डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। Now area of concrete will be the total area minus the area of steel. Of course, area of concrete कितना हो जाएगा? Total area minus area of steel. तो total area है b square minus 0.1% of this b square. ऊपर से यहाँ से ले लेंगे वैल्यू, ठीक है। So it is coming 0.99 times b square. That means 1% is the steel and 99% is the area of concrete, right? So we will be designing using this assumption. आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो फॉर डिजाइनिंग ऑफ द कॉलम एंड वी आल्सो डोंट नो दैट इफ इट इज अ शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, राइट। सो फर्स्ट वी विल assume that it is a short column, or you can itself you can assume that it is a long column। आप कुछ भी assume करके चलो, आगे चल के आपको चेक करना पड़ेगा कि हमने जो चीज assume की कि वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं assume करके चल रहा हूँ कि शॉर्ट कॉलम के जो फॉर्मूला था लोड का वो कितना था, P equals to area into the stress of the steel and area into stress of the concrete, ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन में जो देखिए CC का मतलब है कि कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है। सिग्मा CBC होता था बेंडिंग कंप्रेशन में, ये होगा डायरेक्ट कंप्रेशन में क्योंकि ये कंप्रेशन मेंबर है, कॉलम में कंप्रेशन मेंबर, ठीक। सो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। P आपको गिवन है 1000 किलो न्यूटन के लिए आपको करना था, तो 1000 into 10 to the power 3 दैट मींस 1000 into 10 to the power 3 न्यूटन में हमने कन्वर्ट कर लिया। एरिया ऑफ स्टील ASC ऊपर हमने निकाल लिया 0.01 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और AC एरिया ऑफ कंक्रीट भी हमने निकाल लिया 0.99% ऑफ बी स्क्वायर, ये आपने निकाल लिया। अब बचा सिग्मा SC एंड सिग्मा CC, मतलब सिग्मा स्टील इन कंक्रीट इन कॉलम और सिग्मा CC मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन में कंक्रीट का कितना स्ट्रेस है। सो आपको पता है कि बेंडिंग कंप्रेशन कौन सा इसमें कौन सा दिया हुआ है, हम लोग डिजाइन कर रहे हैं M20 एंड Fe415, सी M20 एंड Fe415। तो स्टील के लिए देख लेते हैं पहले, सिग्मा SC स्टील के लिए, Fe415 के लिए यहाँ पर मैंने टेबल मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या होता था, सिग्मा ST वाज स्टील इन टेंशन वाज यूज्ड टू बी 230, है ना। Fe415 के हम 230 यूज करते थे सिग्मा ST, बट हम यहाँ पर सिग्मा SC यूज कर रहे हैं क्योंकि कंप्रेशन मेंबर है कॉलम, तो कंप्रेशन वाला फॉर्म वो यूज करेंगे, दैट इज 190, ठीक है। तो यहाँ पर हम 190 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये टेबल मैंने आपको पहले WSM सॉल्व करते हुए दी है, आप लोगों के पास है टेबल, ठीक है। उसी तरीके से सिग्मा CC डायरेक्ट कंप्रेशन में, देखिए सिग्मा CBC बेंडिंग कंप्रेशन में कितना होता है इसके लिए, M20 के लिए 6.5 के अराउंड होता है ना, और डायरेक्ट कंप्रेशन में होता है 5, ठीक है। ये भी टेबल आपके पास IS 456 में भी है और मैंने भी आप लोगों को ये WSM में बताया, तो यू कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यू अकॉर्डिंगली। सो इसमें एक ही चीज अननोन है B, तो width ऑफ दिस कॉलम यू कैन फाइंड व्हिच इज कमिंग 382 mm, ठीक है। सिंपल ये कितना आ गया 382 mm इसकी विड्थ आ गई। नाउ अब देखिए, अब आपको चेक करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव अज्यूम टू थिंग्स, राइट। आपने पहले तो एक तो स्टील अज्यूम किया कि ये 1% है, दूसरा आपने अज्यूम किया कि ये शॉर्ट कॉलम है। आपको चेक करना पड़ेगा कि जो आपका अजम्पशन है क्या वो सही है भी कि नहीं है, ठीक है। सो उसको आप चेक कैसे कर सकते हो, यूजिंग स्लेंडरनेस रेशियो। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता था, इफेक्टिव लेंथ अपॉन द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। अब इसमें इस वाले में तो लीस्ट लेटरल कुछ है ही नहीं क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है ना, तो B आपकी लीस्ट लेटरल हो जाएगी। रेक्टेंगुलर कॉलम होता तो उसमें अलग होता, उसमें जो भी शॉर्ट होती है वो आप ले लेते, जो भी लीस्ट होता है वो ले लेता है, either B और D जो में भी होता है वो आप यूज कर सकते हैं। बट दिस इज अ स्क्वायर कॉलम तो दिस विल रिमेन सेम। सो L effective अपॉन द लीस्ट लेटरल डायमेंशन दैट इज B। L effective कितना, इफेक्टिव लेंथ आपने निकाली थी जस्ट 7.8 मीटर, mm में कन्वर्ट कर दो तो 7800 mm, और B अभी जस्ट निकला आपको 382। सो स्लेंडरनेस रेशियो इज कमिंग 20.42, ठीक है। और मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 12 आता है तो वो लॉन्ग कॉलम कहलाया जाता है। सो ये असम्पशन हमारा गलत हो गया, इट इज नॉट अ शॉर्ट कॉलम, इट इज अ लॉन्ग कॉलम, ठीक है। इस तरीके से आप पता कर लो, तो अब आपको लॉन्ग कॉलम की तरह डिजाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर आपको पता चल गया इट इज अ लॉन्ग कॉलम। सो लॉन्ग कॉलम का क्या फॉर्मूला होता था, ये चीज तो सेम रहती थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस किसमें आते थे, एक इसमें फैक्टर और ऐड हो जाता था CR, ठीक, ये मैंने आपको बताया था, जिसकी वैल्यू होती थी 1.25 टाइम्स L इफेक्टिव अपॉन 48B, ठीक है। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, ये तो आपको पता ही है, ये हमने जस्ट अभी ऊपर ही रखी है ये वैल्यू जो सेम है ऊपर की तरह,
190 इंटू 99 इंटू 5, ये सेम है ये चीज, ठीक है। बट ये वाले पोर्शन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1.25 माइनस एल इफेक्टिव इज 7800 48 इंटू बी। बी इज नॉट नोन राइट नाउ, ठीक है। तो बी हम लोगों को कैलकुलेट करना है डायमेंशन, और ये पी आपको ऑलरेडी गिवन था 1000 किलो न्यूटन। तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, आप फर्दर सॉल्व करेंगे। सो ओनली वन टर्म दैट इज बी इज अननोन, तो बी निकाल लेंगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, आप सॉल्व करेंगे इसको, तो बी आ रहा है 412 mm, ठीक है। 412 mm इसकी विड्थ आ गई है। सो वी आर यूजिंग लाइक 412 mm हम लोग यूज कर रहे हैं। सो एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट मैंने बताया था 1% ऑफ द बी स्क्वायर हमने अज्यूम किया हुआ है, 1% ऑफ द बी स्क्वायर हमने अज्यूम किया हुआ है, 1% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 1% 0.01 इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ गया, बी कितना आ गया 412। 412 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका एरिया ऑफ स्टील ASC आ जाएगा, ठीक है। तो जहां पर आपको एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम या एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन पता चल गया ASC, तो आप निकाल सकते हो कि कितनी बार्स आपकी यूज होंगी। सो मैंने आपको एक और एजम्पशन बताया था कि हम लोगों को जो बार यूज करनी होंगी, तो हम लोगों का मिनिमम डायमीटर कितना होगा 12 mm का होगा, तो इससे बड़ी बार आपको यूज करनी है, ठीक है। सो आप कितना भी अज्यूम करके देख लो, कहाँ पर था, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूज किया हुआ है नंबर ऑफ 16 mm बार्स, तो कितनी नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे, मैंने 16 mm की बार यूज की है, तो आप यूज कर सकते हो इसको। कैसे निकालते थे नंबर ऑफ बार्स निकालना आपको, तो एरिया आपको पता है 1697 अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर 16 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज कमिंग लाइक 9, तो 9 तो यू कैन नॉट प्रोवाइड 9, ठीक है। तो 9 आप कैसे आप प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, इसमें आपको बेसिकली इसको डिवाइड करना पड़ेगा अलग अलग रेनफोर्समेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको किस तरीके से कर सकता हूँ इसको डिवाइड, देखिए मेरा एरिया है 1697, ठीक है। 1697 इसके अराउंड मुझे लाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 बार में 20 mm की यूज कर रहा हूँ और 4 बार में 12 mm की यूज कर रहा हूँ। 12 mm मिनिमम है, इससे कम की आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डायमीटर है 4 बार्स ऑफ 20 डाया एंड 12 बार्स ऑफ 4 बार्स ऑफ 12 डाया, ठीक है। तो ये आप निकालोगे, ये आ गया 1256 और ये आ गया 452, इसको आप ऐड अप करोगे तो वो ये 1709 mm स्क्वायर आ रहा है, और देखिए हमारा कितना था 1697 था, तो ऑलमोस्ट हम लोग करीब करीब पहुंच गए हैं उसके, ठीक है। अगर आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 16 mm की जगह 20 mm की 4 लगा दी है और 12 mm की भी 4 लगा दी है। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं 9 नहीं प्रोवाइड कर सकता था, मैं 8 प्रोवाइड कर सकता था इसमें, ठीक है। तो मैंने इसमें 4 इंटू 4 की दो अलग अलग टाइप की ये यूज कर लिया रेनफोर्समेंट। सो एरिया देखिए आप इंश्योर कीजिएगा कि इससे ज्यादा का ही एरिया है, इससे कम ना हो, इससे कम आएगा तो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ही ज्यादा आ रहा है, कुछ ही ज्यादा आ रहा है, देखिए 1697 है 1709 है, मतलब काफी प्रिसाइज आ रहा है, थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है, ठीक है। मतलब 12-13 mm का फर्क आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, mm स्क्वायर। सो ये आपकी मेन एनफोर्समेंट हो गई। मेन एनफोर्समेंट कितनी है, 4 नंबर ऑफ 20 mm है, 4 नंबर ऑफ 12 mm है, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, अभी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूँ। अब आपकी मेन एनफोर्समेंट आ गई, अब आपको लगाने हैं स्टिरअप्स। स्टिरअप्स क्या होते हैं, जो आपके, ये आपकी मेन एनफोर्समेंट आ गई, देखिए यहाँ पर डायग्राम में मैंने बना रखा है, यहाँ पे ये आपकी मेन एनफोर्समेंट आ गई, ठीक है। और आपकी फिर स्टिरअप जो इसको बाइंड करेगी, स्टिरअप या टाइज, स्टिरअप जो है उसको डिजाइन करना है। स्टिरअप डिजाइन करने का क्या फॉर्मूला था, ऊपर मैंने बताया आप लोगों को स्टिरअप की डिजाइन के लिए, जस्ट मैं आपको शो भी कर देता हूँ इफ यू डोंट रिमेम्बर। ये देखिए, ठीक है, ये चीज हमने यूज की हुई है फॉर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये डायमीटर स्पेसिंग वगैरह का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, सो यू कैन यूज दिस क्राइटेरिया। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सो स्टिरअप्स के लिए डायमीटर आपको निकालना है, आप कैसे फिक्स करोगे, डायमीटर शुड बी द मैक्सिमम ऑफ आइदर मेन एनफोर्समेंट का डिवाइडेड बाई 4 और 6 mm, ठीक है। तो मेन एनफोर्समेंट देखिए कौन कौन सी है, मेरे पास 20 mm भी है और 12 mm भी है, तो आप कौन सी यूज करोगे, जो बड़े डाया की होगी। 20 mm की मेरे पास मेन एनफोर्समेंट अपॉन 4 दैट इज 5 mm, 20 अपॉन 4 इज 5 mm और 6 mm। आपको इनमें से कौन सी यूज करनी है, जो मैक्सिमम स्पेसिंग में बार यूज करनी है। स्पेसिंग मतलब कि
आपका ये कॉलम है, मतलब ये आपकी रेनफोर्समेंट है कॉलम की। एक स्टिरअप आपने यहाँ पर बांधी है, अगली स्टिरअप आप यहाँ बांध रहे हो, फिर अगली नीचे बांध रहे हो, तो इसके बीच की स्पेसिंग क्या होगी? दिस इज योर स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, ठीक है, ये आपकी स्पेसिंग है। तो ये स्पेसिंग कितनी आप प्रोवाइड कर सकते हो, वो आप कैसे लिखोगे? इट शुड बी इट शुड बी लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो इस वाले केस में स्क्वायर कॉलम है तो बी होगा, है ना? तो बी हमारा 420 आया था, 412 आया था, सॉरी 412 था, ये मिस्टेक से लिखते। तो 412 था, 412 mm की थी। दूसरा क्राइटेरिया है 16 टाइम्स द मेन डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर। तो मैक्सिमम डायमीटर अगेन, सॉरी मिनिमम डायमीटर, स्पेसिंग में हम लोग मिनिमम डायमीटर यूज कर रहे हैं। तो मेन रेनफोर्समेंट का मिनिमम डायमीटर था 12, मैक्सिमम था 20, तो मिनिमम वाला यूज करेंगे। 16 to 12 is 192 mm एंड 300 mm। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी योर स्पेसिंग, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसमें से मिनिमम कौन सा है, इट इज 192 mm। सो 192 mm आपकी स्पेसिंग है। तो आप स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड करेंगे? यू विल प्रोवाइड 6 mm डाया की रेनफोर्समेंट एट 190 mm सेंटर टू सेंटर। ये आपकी आ गई स्टिरअप्स की डिजाइन, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, डायमीटर में आपको मैक्सिमम वाला यूज करना है और स्पेसिंग में आपको मिनिमम जो स्पेसिंग है वो यूज करनी है। तो ये 192 है, इसलिए इसने इसको 190 दे दिया है, ठीक है। तो अब आप इसकी डिटेलिंग देखिए कैसे दिखेगी अगर आपका कॉलम बनेगा। सो दिस इज योर सेक्शन, ठीक है। 412 का हम लोगों ने यहाँ पे 420 हो रखा है, अज्यूम आप कर सकते हैं। तो ये 412 आप ऊपर वैल्यू आ रही थी, 412 भी आप रख सकते हैं। सो 412 की ये वेट हो गई, ये भी 412 का आएगा 412 mm का, ठीक है। और आपकी कितनी रेनफोर्समेंट है? देखिए मेन रेनफोर्समेंट इज 4 नंबर 20 mm डाया। तो जो बड़ी वाली डाया है आप वो कॉर्नर्स पे लगा दें, 1 2 3 और ये 4, ये तो 20 mm की होगी, ठीक है। ये मैंने लिखा है 4 ऑफ 20 mm, ये देखिए लिखा, 4 रेनफोर्समेंट तो ये हो गई 20 mm डाया की। बाकी बची जो 4 हैं वो है 12 mm की, तो वो हमने लगा दी सेंटर पे, 1 2 3 4, ये देखिए, ठीक है। तो ये 4 हो गई हमारी 4 बार्स ऑफ 12 mm डाया, ये भी यूज हो गई। तो ये हमारी ये मेन रेनफोर्समेंट्स आ गई। अब इसको जो बांधेगा वो क्या होगा? स्टिरअप होगा। ये जो रेनफोर्समेंट जा रही है ये इसको बाइंड कर रही है, बांध के रख रही है स्टिरअप, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये स्टिरअप हमारी कितनी आ रही है, और अंदर वाले को भी बांधना पड़ेगा। देखिए जब आप 4 यूज कर रहे हैं तब तो आप एक ही स्टिरअप ऐसे बांध सकते हैं, लेकिन अगर आप तो 4 से ज्यादा यूज कर रहे हैं, 8 है जैसे, तो आपको अंदर भी एक बार स्टिरअप लगानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से इसको भी बांधना पड़ेगा अंदर वाली रेनफोर्समेंट को। तो ये जो आपकी स्टिरअप्स आ रही हैं, ये वाली और ये वाली जो है स्टिरअप बाहर वाली, ये कितना आ रहा था हम लोगों का स्टिरअप्स कितना आ रहा था? 6 mm एट 190 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये 6 mm डाया की हमने रेनफोर्समेंट लगाई है एट 190 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। आपने रेनफोर्समेंट निकाल लिया, आपने साइज ऑफ द कॉलम बता दिया कि कितना होगा। आपको देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आपको दिया गया था कि आपको एक कॉलम बनाना जो 1000 किलोमीटर का लोड ले सके और उसकी जो लेंथ है वो 12 मीटर की है ना। ये सिर्फ इतना आपको बताया गया था और बताया था कि स्क्वायर कॉलम आपको डिजाइन करना। तो आपने ये पूरा डिजाइन करके दे दिया एज अ डिजाइनर, एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, या फिर मतलब सिविल इंजीनियर कहना है बेसिकली। तो आपने इसको पूरा डिजाइन करके दे दिया कि अगर आप इस डायमेंशन का 412 का अगर आप बनाएंगे और इतनी रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करेगा तो 1000 किलोमीटर आराम से लोड बेयर कर देगा। सो इट विल बी सेफ फॉर 1000 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉलम को डिजाइन करते हो। तो ये एक सिंगल कॉलम हम लोगों ने डिजाइन करना सीखा अभी, जो कि एक स्क्वायर टाइप का रेक्टेंगल होगा, वो भी इसी तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ था नहीं, जो भी हमारे कोड के प्रोविजंस है वही हमने अप्लाई किए हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो मूविंग अहेड टू सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज ऑन सर्कुलर कॉलम। अगर आपको सर्कुलर कॉलम डिजाइन करना है, अब देखिए यहाँ पर पहले से लिखा है डिजाइन अ शॉर्ट सर्कुलर कॉलम ऑफ 600 mm डाया। तो इसका डायमीटर फिक्स कर दिया है। जो आपका क्लाइंट है उसने आपको बोला है कि 600 mm डायमीटर का हमें कॉलम चाहिए, जो कि सर्कुलर शेप का होना चाहिए, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर नहीं चाहिए। और लोड उसने बताया कि 2500 किलो न्यूटन का लोड उसको झेलना है, ठीक है। और आपको सर्कुलर कॉलम है, आप उसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हो। हेलिकल जो मैंने कल बताया था आपको, हेलिकल रेनफोर्समेंट उसकी कैसे डिजाइन होगी, ठीक है। ये वाली जो हेलिक्स की तरह से आ रही थी, तो ये टाई है बेसिकली, जो रेनफोर्समेंट है
ये जो रिइंफोर्समेंट है उसको बाद में निकला इस तरीके से हेलिकल शेप में बनाया गया। तो जो बेसिकली ये क्या चीज़ है, जो हम स्टेरप्स बना रहे थे, जो मैंने स्टेरप आपको दिखाए थे, ये वाले एक यहाँ पर लगा हुआ है, अगला नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ये सेपरेट स्टिरप्स हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं। बट हेलिकल में क्या होता है, एक ही स्टिरप को आप हेलिकल शेप में आप उसको बाइंड कर लेते हो रिइंफोर्समेंट को, ठीक है। तो हेलिकल रिइंफोर्समेंट वाला कॉन्सेप्ट के केस है, इसमें भी M25 है और Fe415 स्टील यूज करना है आपको। कैलकुलेट मेन बार्स निकालनी, कितना मेन बार का रिइंफोर्समेंट होगा, एंड साइज एंड पिचिंग ऑफ द हेलिकल टाइज, मतलब आपको मेन बार भी कैलकुलेट करना है कि कितना एरिया होगा मेन बार का, और आपको टाइज मतलब कि स्टिरप्स जो है, बेसिकली टाई बोल रहे हैं इसको, तो ये भी आपको निकालना है कि इसका कितना एरिया होगा, इसका कितना साइज होगा और इसकी कितनी पिच होगी, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो हम लोगों ने कल कॉन्सेप्ट देखे थे उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, लेट्स सी आप इसको कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। So here you can see we are designing a short column और diameter आपको 600 mm ऑलरेडी गिवन है, ये बताया गया कि 600 mm का diameter है शॉर्ट कॉलम के लिए। जो हमारा ये क्या बोलते हैं, दिस लोड बेयरिंग जो फॉर्मूला था, लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी उसका फॉर्मूला था, वो ये था, ठीक है। फॉर्मूला तो सिर्फ इतना था एक्चुअल में, बट जब हम सर्कुलर कॉलम डिजाइन करते तो मैंने बताया था आपको 1.05 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट्स इट, ठीक है। ये आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कल की क्लास में, तो 1.05 टाइम्स आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको लोड पता है 2500 किलो न्यूटन है, ये आपने यहाँ रख दिया। एरिया ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आपको नहीं पता है, सिग्मा एस सी आप निकाल सकते हो 190, बिकॉज Fe415 के लिए स्टील इन कंप्रेशन 190 होता है, स्टील इन टेंशन 230 होता है, ये याद रखिएगा। सिग्मा एस टी इज 230 फॉर Fe415 और सिग्मा एस सी इज 190, ठीक है। वो आप टेबल में देख सकते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसका आईएस कोड के टेबल में आप देख सकते हैं आराम से। उसी तरीके से एरिया ऑफ कंक्रीट, अब एरिया ऑफ कंक्रीट क्या होगा, सिंपल, जितना टोटल एरिया है उससे स्टील का एरिया माइनस कर दो, एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो टोटल एरिया इज π/4 इंटू डी स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर कॉलम है तो एरिया क्या होगा π/4 डी स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन ASC, उसको आप माइनस करोगे तो इससे एरिया ऑफ कंक्रीट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कंक्रीट ये आ गया इनटू डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है, कंक्रीट स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन डायरेक्ट कंप्रेशन। तो स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट कितना होता है, M25 के लिए 6 होता है, ठीक है, और M20 के लिए 5 था। तो ये आप टेबल से देख सकते हो, इनटू 1.05 से मल्टीप्लाई करना है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसमें एक ही अननोन है ASC, तो आप ASC को निकाल सकते हो। एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम और एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन इज 3720 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन तो आपको पता चल गया, ये 3720 mm स्क्वायर। अब ये कितने रेनफोर्समेंट्स होंगे, ये कैसे निकालेंगे, सिंपल, नंबर ऑफ 25 mm डाया बार, देखिए हम 25 mm की डाया की बार यूज कर रहे हैं। हाँ जी सर, जैसे हम लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम को चेक कर रहे हैं ना सिलिंड्रिकल रेशियो से, हाँ तो सर जैसे लेस देन इक्वल्स टू 12 कर रहे हैं हम शॉर्ट के केस में, और लॉन्ग के केस में ग्रेटर देन कर रहे 12 से, तो वहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यों नहीं कर रहे सर? कहाँ पर नहीं कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू? लॉन्ग के केस में नहीं, शॉर्ट के वो लिखा हुआ है ना, शॉर्ट कॉलम में लेस देन इक्वल्स टू 12 है, और उससे ज्यादा 12 से ज्यादा की वैल्यू आएगी तो लॉन्गर है ना। हाँ, अगर 12, हाँ अगर 12 या वो तो उससे सर है, पर इक्वल्स टू क्यों नहीं है? मतलब किस में इक्वल्स टू नहीं है? लॉन्ग शॉर्ट वाले में तो हम ले रहे, मतलब इक्वल्स टू भी ले रहे हैं ना, लेस देन और इक्वल्स टू भी ले रहे, हाँ हाँ, और लॉन्ग के केस में केवल ग्रेटर देन ले रहे। अरे तो वही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 12 है या 12 से कम है तो शॉर्ट जी जी, है ना, और 12 से ज्यादा है, मान लीजिए 12 से कुछ भी ज्यादा आ रही है, 12.1 आ रहा है मान लीजिए, तो वो सर लॉन्ग कॉलम कहलाएगा, है ना। तो एक ही चीज एक ही में आ सकता है ना इक्वल्स टू, तो ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। तो और बेंडिंग मोमेंट कौन से केस में ज्यादा रहेगा सर, शॉर्ट में लॉन्ग में? क्या चीज? बेंडिंग मोमेंट। देखिए वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना, तो आप जी उसको सर, कैलकुलेट करेंगे उसमें, ठीक है। ठीक ठीक तो सर, अभी मैं थैंक यू आगे सर। और आपको इसमें और डिटेल में मैं आपको न्यूमेरिकल्स के तौर पे और बताऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है। आपको जो कंफ्यूजन है मैं समझ गया हूँ कि कैसे आ रहा है लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम में, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोगों का जो क्वेश्चन आया है वो शॉर्ट कॉलम पे है, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट कॉलम की तरह ही बता रहा हूँ। अगर इसमें मेंशन नहीं किया होता तो इसमें भी हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि आइदर इट इज अ शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है इसमें, ये एक्चुअली क्वेश्चन में बोला हुआ है शॉर्ट कॉलम, इसलिए हम इसको शॉर्ट कॉलम की तरह डिजाइन कर रहे हैं,
ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल मैं आपको ऐसे भी दिखाऊंगा जिसमें आपको ये सब डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट हम लोगों ने निकाले 3720 mm²। हम यूज कर रहे हैं 25 mm डाया की बार, ठीक है। तो आप इसको क्लियरली निकाल सकते हैं। द एरिया ऑफ स्टील इज 3720 mm² अपॉन π/4 इंटू डी स्क्वायर। इससे निकाल लो तो ये आ रहा है 7.57। तो 7.57 तो इतनी सरिया तो आप कैसे प्रोवाइड करोगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके मतलब इसको होल नंबर पे लेना पड़ेगा, दैट इज 8, ठीक है। आप 8 यूज कर सकते हो। तो 8 नंबर ऑफ बार आप यूज कर रहे हो कितनी, 25 mm डाई। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, पहला वाला पोर्शन जो था मेन बार जो थी वो कितनी हो गई, 8 नंबर ऑफ 25 mm डाई। तो पहला पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया। अब आपका सेकंड पार्ट है टू सॉल्व द दिस स्टीरअप्स और हेलिकल टाइज। हेलिकल जो टाई है इनको आपको साइज और पिच बतानी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो हेलिकल रेनफोर्समेंट तो अब मैंने बताया था आपको 8 तो आपकी मेन रेनफोर्समेंट हो गई, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो आपकी मेन रेनफोर्समेंट हो गई। इनको जो बांध रहा है वो क्या है, हेलिकल रेनफोर्समेंट है। ये वाली जो रेड कलर से दिख रहा है ये हेलिकल रेनफोर्समेंट है, ये हमें डिजाइन करनी है, ठीक है। ये हेलिकल है। ऊपर टॉप व्यू आप देख रहे हैं, प्लान देख रहे हैं इसका, तो आपको सर्कुलर दिख रही है, हालांकि नीचे ये हेलिक्स शेप में है, ठीक है। तो फॉर हेलिकल रेनफोर्समेंट मैंने आपको ये बताया था, इस क्राइटेरिया को आपको चेक करना पड़ेगा। 0.36 एफसी के एफवाई एजी अपॉन एसी माइनस 1 शुड बी लेस देन बीएच अपॉन बीसी। तो ये क्राइटेरिया आपको चेक करना पड़ेगा। आपको फिर बीएच निकालना पड़ेगा, बीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एजी और एसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एफसी की और एफआई आपको पता ऑलरेडी, ठीक है। सो वेयर डीजी कितना होता है, डीजी यहाँ से यहाँ तक का होता है, मतलब कि ग्रॉस डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डायमीटर है दैट इज योर डीजी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये डायमीटर कितना है, ये तो ऑलरेडी गिवन है आपको 600 mm है ग्रॉस डायमीटर। तो एरिया ऑफ द ग्रॉस कितना हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। सो ये आ रहा है आपका एरिया ऑफ द ग्रॉस। तो एजी तो आपका निकल आया 282743 mm², ये आपका निकल आया। अब आपको निकलना है कोर का एरिया, एसी मतलब ये वाले का एरिया, कोर कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको आपके लिए डीसी निकालना पड़ेगा। और डीसी क्या होता था, डीसी होता था आपका जो टोटल डायमीटर माइनस दिस कवर। तो 2 टाइम्स ऑफ कवर, ये वाला पोर्शन माइनस कर दो आप और ये वाला पोर्शन माइनस कर दो आप, ठीक है। तो ये आ गया आपका डीजी वाज 600 एंड 2 इंटू क्लियर कवर हमारा कितने का है, 40 mm का, मतलब हम कॉलम में 40 mm का कवर दे रहे हैं। दिस इज योर 40 mm कवर। तो 2 बार 40 mm को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, सॉरी 600 माइनस 2 इंटू 40 mm, सो दिस इज गिविंग यू 520 mm, ठीक है। 520 आ गया, मतलब 600 माइनस 80 हो जाएगा 520 mm। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ द, ये देखिए एसी निकालना है, एरिया ऑफ द कोर निकालना है। एरिया ऑफ द कोर क्या होगा, π/4 इंटू डीसी स्क्वायर। तो डीसी आपका 520 आ गया, तो आप निकाल लो इसको, दिस इज कमिंग दिस। तो ये दो चीज आ गई हैं। अब बचा क्या आपका, VHN VC, ठीक है। इनको निकालने का लिए फॉर्मूला था, VC क्या होगा, VC मतलब वॉल्यूम ऑफ द कोर फॉर 1 मीटर लेंथ। 1 मीटर लेंथ मतलब कि, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 1000 mm। तो एरिया जितना भी आ रहा था, एरिया ऑफ द कोर कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो वॉल्यूम ऑफ द कोर भी आ गया, आपको VC पता चल गया। अब मेन चीज आपका VH निकालना। VH के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा था, है ना, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, वॉल्यूम ऑफ द हेलिकल रेनफोर्समेंट VH फॉर 1 मीटर लेंथ ऑफ द कॉलम। 1 मीटर लेंथ की निकालना है। एज्यूम डाया ऑफ द हेलिकल रेनफोर्समेंट 8 mm डाया। अभी हमें हेलिकल रेनफोर्समेंट की डायमीटर नहीं पता, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो 8 mm डाया की है, ठीक है। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमें गिवन नहीं है इसमें। सो DH विल बी, हेलिकल की क्या होती थी, हेलिकल का डायमीटर कितना होता था, ये वाला जो है इसका डायमीटर, हेलिकल रेनफोर्समेंट का डायमीटर क्या हो जाता था, DC माइनस डायमीटर ऑफ द हेलिकल रेनफोर्समेंट, मतलब जो DH जो आपका हेलिकल रेनफोर्समेंट का टोटल डायमीटर है। तो दिस इज योर DC इज 520 ऑलरेडी निकाला है हमने। DH या अज्यूम किया है 8 हमने, तो 512 का इसका DH है। DH मतलब हेलिकल वाला जो आ रहा है, ठीक है। सो VH का फॉर्मूला होता था ये वाले नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 मीटर, ये आपको निकालना था। ये πDH आपको था फॉर्मूले में, और π/4 d स्क्वायर 5h स्क्वायर ये आपका था। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आप पुट कर लेंगे 1000, दैट इज फॉर 1 मीटर अपॉन द पिच। दिस P इज पिच, ठीक है। पिच क्या होती थी,
मैंने बताया था इसमें आपको, ये जहाँ पर से ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके इस पहले वाले के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज योर पिच। ठीक है, तो ये अभी नोन नहीं है आपको पिच, तो पी आप ऐसे ही रहने देंगे फिलहाल। पाई इंटू 512 डी एच यहाँ से निकाल लिया आपने, और पाई बाई 4 इंटू 8 स्क्वायर, या 8 हमने एज्यूम किया था, द डायमीटर ऑफ द हेलिक्स। तो ये आ रहा है आपका दिस वैल्यू, क्योंकि पी हमें पता नहीं है तो इसलिए पी हमने सिर्फ ऐसा रखा हुआ है। नाउ वही फॉर्मूला हमने वापस से लिख दिया। ठीक है, दिस, तो आइदर दिस शुड बी, ये देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, आइदर इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम लोग इसको मान के चल रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है इसके इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमें एक वैल्यू नोन नहीं है, अगर मैं इसको इसके इक्वल रख देता हूँ तो मुझे पिच पता चल जाएगा। तो एवरीथिंग इज नोन, एफ सी के मतलब की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M25 to 25 होती है, FY की 415 होती है, ए जी आपने निकाल लिया, ए सी आपने निकाल लिया, -1 इक्वल्स टू वी एच ऊपर निकाला आपने, और बी सी भी अभी जस्ट निकाला था आपने। ठीक है, इसमें एक ही चीज अननोन है, पी, दैट इज पिच। तो पिच आप कैसे निकालोगे, इसको इक्वल्स टू कर लो, आप इसके इक्वल रख के देख लो इस फॉर्मूले के, और पिच इससे आ रही है 52.97 mm। सो यू आर गेटिंग योर पिच एज 52.97 mm। बट क्राइटेरिया क्या कहता है हम लोगों का, पिच आप कितनी लगा सकते हो, पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में तो ये पास हो गया, हमारा कितना है 52.9 है, 53 मान लो इसको, तो इट शुड बी नॉट बी लेस देन 75 mm। ओके हो गया, ये ठीक है, हमारा इस क्राइटेरिया में बैठ गया। पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन BC by 6, मतलब कोर का जो डायमीटर है 520/6, तो दिस इज कमिंग 86, तो इससे भी छोटा है, ये भी ठीक हो गया। एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द हेलिक्स का जो हमारा डायमीटर हमने सिलेक्ट किया हुआ, तो 3 टाइम्स ऑफ 8 हमने सिलेक्ट किया था, इट इज कमिंग 24, तो इससे ये ज्यादा है, तो पिच शुड नॉट बी लेस देन 24, ये लिखा तो हमारा 52 है, तो इस क्राइटेरिया में भी हम लोग पास हो गए। इसका मतलब ये है कि जो हमने अज्यूम किया, प्रोवाइड 80 mm डाया एट 50 mm सेंटर टू सेंटर, मतलब ये हमने जो भी अज्यूम किया ये करेक्ट अज्यूम किया हुआ। ठीक है, हमारा ये डिजाइन पास हो रहा है पूरे क्राइटेरिया। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो मैंने ये आपको कल ही बताया था कि कोड में भी गिवन है और यहाँ पर भी आपको गिवन है, कल के लेक्चर में आपको दिखाऊंगी। तो here you can see दिस वन, पिच ऑफ द हेलिकल रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो मैंने बताया था पिच कभी भी 75 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, BC/6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इट शुड नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ हेलिक्स। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में आप चेक करेंगे तो वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो योर डिजाइन इज राइट अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया, दिस क्राइटेरिया, ये वाला जो हमने इसके हिसाब से आपने चेक कर लिया इसको। ठीक है, तो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो अपना कॉलम। तो जो भी आपने अज्यूम किया हुआ है वो ठीक है। तो आप अगर वेरिएशन चाहते हो तो आप मतलब काफी कुछ चेक कर सकते हो। आप इसको जो आपने हेलिक्स का डाया 8 रखा था, इसको 10 रख के देख लो, या 12 रख के देख लो, ठीक है, या 6 mm रख के देख लो हेलिक्स का डाया। तो आप ये वेरिएशन करके अपनी कैलकुलेशन में देख सकते हो कि किस वाले क्राइटेरिया में पास हो रहा है या फेल हो रहा है ना। अगर फेल हो रहा है तो आपको चीजें रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से आप लोग फर्दर इसको डिजाइन करते हो। ठीक है, तो ये आपका था सर्कुलर कॉलम, राइट। अब इसमें हम लोग एक रिकमेंडेशन और है, आईएस रिकमेंडेशन। तो आपको आईएस रिकमेंडेशन फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, देखिए आईएस कोड क्या कहता है फॉर स्लेंडरनेस रेशियो, अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड रेस्ट्रेंट्स। एंड रेस्ट्रेंट्स मतलब कि जो भी कॉलम के एंड्स में है, एंड रेस्ट्रेंट्स मतलब आइदर इट कैन बी फिक्स टाइप और इट कैन बी लाइक पिन जॉइंटेड और व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो इनके जो अनसपोर्टेड लेंथ है, इट शुड नेवर बी मोर देन 60 टाइम्स ऑफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। जो भी कॉलम की लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, आइदर बी और डी, जो भी छोटा है उनमें से, उससे उसका 60 टाइम्स से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कभी भी अनसपोर्टेड लेंथ। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है। आप इससे पता लगा सकते हो कि मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की लिमिट कितनी है, 60 है। तो इससे ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो आप कभी भी नहीं रखोगे। ये कोड का क्राइटेरिया है, जब भी आप कॉलम डिजाइन करने चलोगे तो आप ये चीज ध्यान में रखोगे। ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो की। इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज अनरिस्ट्रेन्ड, अगर एक कॉलम अनरिस्ट्रेन्ड है आपका, ठीक है, अगर मतलब ये तो था कि एंड जो है वो रेस्ट्रेन्ड है, बिटवीन एंड रेस्ट्रेंट्स, तो एंड रेस्ट्रेंट्स हैं आपके, तो उस केस में आपका ये स्लेंडरनेस रेशियो था। अगर आपका वन एंड ऑफ द कॉलम इज अनरिस्ट्रेन्ड, मतलब एक फ्री है या अनरिस्ट्रेन्ड है, तो उसमें अनसपोर्टेड लेंथ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 100 b² by d। ये
आपके गेट में पूछ लेते हैं ये दो है ना कि कितनी होनी चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो, इसलिए आईएस कोड ये रिकमेंड करता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड रिकमेंडेशन है इसेंट्रिसिटी के लिए कि आप कितनी इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। ऑल कॉलम शैल बी डिजाइन फॉर मिनिमम इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम डिवाइडेड बाय 500। अनसपोर्टेड लेंथ मतलब कि जो L था, एक तो था आपका L अनसपोर्टेड लेंथ और एक था आपका इफेक्टिव लेंथ L इफेक्टिव, जिसे हम LE से दिखा रहे थे, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ आपको निकालना आता है उस तरीके से, ये जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो L थी, उसके बेसिस पर आप LE निकाल लेते। तो ये बता रहा है अनसपोर्टेड लेंथ है अपॉन 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन कुछ भी हो सकती है B और D अपॉन 30 सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm। तो इट शुड बी डिजाइन फॉर मिनिमम ऑफ इसेंट्रिसिटी इतनी होनी चाहिए। तो इसको आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितनी होगी निकालना होगा कभी आपको, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ई मिनिमम इज इक्वल्स टू L बाई 500, मतलब ये देखिए अनसपोर्टेड लेंथ मतलब L अपॉन 500 प्लस लेटरल डायमेंशन दैट इज B और D अपॉन 30, ठीक है। तो एक तो ये है सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 20 mm, मिनिमम जो है उसका 20 mm, इससे कम नहीं होना चाहिए। सो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा विच एवर इज मोर विल बी योर ई मिनिमम, इन दोनों में से जो भी ज्यादा आएगा, मान लीजिए 20 और ये 30 आ रहा है तो योर ई मिनिमम विल बी 30 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब मिनिमम इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू कोड। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आपको अनसपोर्टेड लेंथ दिया होगा, आपको लीस्ट लेटरल डायमेंशन दिया होगा, आपको गेट में मतलब एक नंबर का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आपको पूछते हैं कि बताइए कि व्हाट विल बी द मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके बता सकते हो कि मिनिमम इसेंट्रिसिटी क्या होगा, आइदर दिस और दिस, इन दोनों में से जो भी विच एवर इज मोर विल बी द मिनिमम इसेंट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड 456, ठीक है। ये वाला आपकी कंडीशन रहेंगी इस वाले में। सो ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बताए इस वाले में, एक दो न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को और शेयर करूंगा इसमें, ठीक है। और हो सकता है एक दो मैं आपको असाइनमेंट के लिए भी दूं ताकि आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर सकें, फिर हम उसको डिस्कस कर पाएंगे। नाउ आज WSM से हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया था, कॉलम को डिज़ाइन करके देखा है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कोई ज़्यादा टफ इसमें है नहीं। बट इसके बाद जो हम पोर्शन करेंगे वो पोर्शन हम लोगों का रहेगा LSM मेथड से, ठीक है। LSM मेथड से हम लोग और फर्दर और डिज़ाइन करके देखेंगे, उसमें हम लोग इसेंट्रिसिटी वाले केस भी देखेंगे। अभी हमने सिंपल केसेस किए हैं, तो ठीक है, उसमें हम लोग एक्सियली लोडेड भी देखेंगे और इसेंट्रिकली लोडेड वाले कॉलम्स भी सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। WSM तो सिर्फ मैंने आपको इसलिए बता दिया कि इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता था, ठीक है। लेकिन हम लोगों का मेन क्राइटेरिया क्या रहता है, हम लोगों का जो अभी लेटेस्ट मेथड है वो क्या है, LSM, ठीक है। तो LSM से हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करके देखेंगे अलग अलग टाइप की इसेंट्रिसिटी के साथ, और एक्सियली लोडेड कॉलम भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। प्लस ये जो रेक्टेंगुलर कॉलम है, सर्कुलर कॉलम है, ये भी हम LSM से करके देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग थोड़ा अपना ज्यादा टाइम यूटिलाइज करेंगे LSM से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपको मैं थोड़ा कंटेंट और इस पे सेंड करूंगा आपकी गूगल क्लासरूम में, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास का आई विल जस्ट मैसेज यू भी कब आपका नेक्स्ट क्लास का सेशन है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू क्लास।